على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آپ حضرات مجھ سے بیشتر ایک کے بعد دیگر علماء کرام شورا نظام سے اپنے انداز میں نعت و منقبت ذکر و اذکار سماعت کیے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور حبیب ملت حضرت العلامہ حضرت علامہ سید غلام محمد صاحب رونق اسٹیج ہونے ہی والے ہیں اور میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. اتنا کم وقت ہی مجھے دیا گیا، ذہن کنفیوز ہو گیا کہ کس بات کو بولوں اور کس کس کو چھوڑ دوں. تو حضرات آئیے ہم اور آپ معمول کے مطابق ایک مرتبہ جھوم جھوم کر اس انداز سے درود شریف پڑھیں کہ پیارے آقا ہم سبوں کی آواز کو سن رہے ہیں. پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی اے محبوب آپ فرما دیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علماء کرام تشریف فرما ہے اور یہ استفہامیہ انکاریہ، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اور اگر اس کو آپ حضرات فن لاجک میں لے جائیں، منطق میں لے جائیں، تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ رات اور دن، جاننا اور نہ جاننا، ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے. تباین کی نسبت ہے کیونکہ تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ اتنا جان لیجئے اگر رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی. تو یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو جاننے والوں میں ہونی چاہیے یا نہ جاننے والوں میں، یعنی پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے. تو حضرات محترم، کیونکہ آپ حضرات کو مکمل طریقے سے سنانے کے لیے وقت بہت لگے گا، تو حضرات محترم ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو جاننے والوں میں سے ہونے چاہیے. ارے جاننے کے لیے ہی بنایا گیا مدرسہ الحبیب، جاننے کے لیے ہی بنایا گیا. اور مدرسہ شہاب العلوم، مدرسہ امام اعظم وغیرہ وغیرہ، مدرسہ مجاہد ملت، دارالعلوم مجاہد ملت، اور رضائے فاطمہ کا لیڈیز مدرسہ جو ہے لڑکیوں کے لیے بھی. میں آپ کو کہنا چاہوں گا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ جلسہ کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اور آپ قرآن کی تعلیم کو جان جائے، حدیث رسول کی تعلیم کو جان جائے. ارے تقریر تو ہوتی ہے لیکن یہ تقریر بھی آپ حضرات سن لیں تاکہ تعلیم رسول عام ہو جائے اور قرآن پاک کی تعلیم عام ہو جائے. حضرات محترم، میں آپ کو جب قرآن پاک کی بات آئی تو بتاتا چلوں یہی قرآن ہے. ہم اور آپ بارہا تعریف سنتے آ رہے ہیں. یہ قرآن اگر ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکی لکھی جائے گی. ہم اور آپ بارہا پڑھتے ہیں
कुरान पाक पढ़ने के लिए यानी बहुत नेकियां है। ये हमारे उलमा बयान करते हैं, मौलाना मोनिरुल इस्लाम साहब बयान करेंगे, मौलाना और सूफी गुलाम मुस्तफा साहब, मौलाना इलियास रजा नूरी साहब वगैरह वगैरह हमारे उलमा बयान करते हैं। लेकिन ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो अपनों ही ने बयान किया है कुरान के तारीफ से। अरे मैं आपको कहना चाहूंगा, अरे तारीफ तो वो करे कि जो दुश्मन हो। मैं आपको कहना चाहूंगा तो वो है बात की बात। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे उलमा तो क्या आज के इस जमाने में अमेरिका के बहुत बड़े लाइब्रेरी में ये लिखा हुआ है, ऐ लोगों, ओ माय पीपल, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द होली कुरान, प्लीज रिसाइट द होली कुरान, प्लीज रिसाइट द होली कुरान। इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज रिसाइट द होली कुरान। ऐ लोगों, अगर आप दुनिया के तमाम सब्जेक्ट पे हावी होना चाहते हो तो कुरान का मुताला करो, कुरान को पढ़ो, यकीनन दुनिया के तमाम सब्जेक्ट पे हावी हो जाओगे। हम तो यही समझते हैं कुरान की बहस, हम तो यही समझते हैं नमाज की बहस कुरान करीम में है, ज़कात की बहस कुरान करीम में है, रोजा की बहस कुरान करीम में है, निकाह की बहस कुरान करीम में है, खुला तलाक की बहस कुरान करीम में है। अरे नहीं नहीं, अरे मेरे मुसलमानों, अरे मेरे लोगों, अरे कुरान पाक तो ताकतों का खजाना और जरिया है। कुरान पाक ताकतों का खजाना और जरिया है। अगर कोई कमजोर हो अरे कुरान पाक तो ताकतों का खजाना और जरिया है। अरे करीब आके तो देखे, पढ़ के तो देखे। ये दारुल उलूम बनाया ही इसीलिए है, ये लेडीज मदरसा बनाया ही इसीलिए है ताकि हम और आप कुरान करीम का मुताला करें, कुरान करीम को जाने, हदीस रसूल को जाने। यही जलसा करना हमारा मकसद है और यही आप लोगों का आना मकसद है। तो ऐ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यही कुरान है। जब तक हजरत उमर ने नहीं समझा था, जब तक हजरत उमर ने नहीं समझा था, रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए जा रहे थे। है आप हजरत ने नहीं सुना क्या है? जब तक नहीं समझा था, प्यारे आका को कत्ल करने के लिए लंगे तलवार लिए जा रहे हैं। किसी ने कहा, किसी ने पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? कहे कि मोहम्मद का काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो उन्होंने फरमाया, अरे जाओ, पहले अपने घर का खबर तो लो, अपने घर का खबर तो लो। अरे तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनों यही कुरान पढ़ के मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गए हैं। हजरत मोहतरम उसके बाद जाते हैं, हजरत उमर जाके देखते हैं उनकी बहन कुरान पाक पढ़ रही है और उनके बहने कुरान पाक पढ़ रहे हैं। हजरत उमर जाते हैं, जाने के बाद उनकी बहन को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, खून आलूदा कर देते हैं, खून आलूदा कर देते हैं। इतने में पूरा बदन खून से एकदम बिल्कुल आलूदा हो गया है। तो उसके बाद हजरत उमर की बहन कहती है, अरे उमर इब्ने खत्ताब, अरे खत्ताब के बेटे, अरे तुमने जिस माँ का दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। अरे तुम तो मुझे जान से मार तो सकते हो, लेकिन मेरे दिल से कुरान की अजमत को मिटा नहीं सकते, मेरे दिल से मोहब्बत रसूल को नहीं मिटा सकते। चुनांचे हजरत उमर की बहन एक किनारे बैठ जाती है, बैठ जाती है। अब हजरत उमर का गुस्सा ठंडा हो जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं, अरे बहन तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या स्टडी कर रहे थे, क्या मुताला कर रहे थे? हजरत उमर की बहन कहती है, नहीं नहीं, इसको सब लोग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि पाको साफ लोग ही पढ़ते हैं। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम की बहन उसके बाद सूरह ताहा की इब्तिदाई आयत पढ़ने लगी, मुताला करने लगी और हजरत उमर सुनते गए, कुरान करीम पढ़ती गई। हजरत उमर सुनते गए और सुनते सुनते एक एक दिल यानी एक एक आयत दिलों पे उतरता गया, दिलों पे उतरता गया। हजरत उमर ने बरजस्ता इरशाद फरमाया, मा अहसन हाज़ल कलाम, मा अहसन हाज़ल कलाम, मा अहसन हाज़ल कलाम। अरे ये कितना उम्दा कलाम है, कितना अच्छा कलाम है। हज़रात मोहतरम, अब मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे वो कलाम को सुनते हैं और ये कहते हैं, ओ माय सिस्टर प्लीज टेल मी
एड्रेस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अरे मेरी बहन, अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का अभी पता तो बता दो, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ, इस्लाम में दाखिल होने के लिए तैयार हूँ। कुरान से हज़रत उमर ने जब तक नहीं समझा था कुरान से, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। अल्लाहू अकबर, या रसूलुल्लाह नहीं छोड़ेंगे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात माथे की आंखों से हुजूर हबीब मिल्लत नवासाई हुजूर मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद गुलाम मोहम्मद साहब किबला उनके चेहरे की ज़ियारत करें और शर्फियाब होते रहे। तो हजरत मोहतरम मैं अर्ज कर रहा था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन, अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का पता तो बता दो, अभी मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। तो मालूम क्या हुआ, जब तक हजरत उमर ने कुरान को नहीं समझा था, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे, जब कुरान को समझने लगे तो मुस्तफा जाने रहमत के दामन में आ गए, मुस्तफा जाने रहमत के दामन में आ गए हैं, मजहब इस्लाम के दामन में आ गए हैं। ये है कुरान का एजाज, ये है मेरे प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कमाल। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरा कहने का मतलब ये है, इसलिए कि वक्त हो गया है, मुझे जितना वक्त दिया गया था मैं आप हजरात के सामने बयान किया, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप हजरात कुरान के तालीम को आम करें। अगर आप अपने नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने बच्चे को भेजें, अपनी बच्चियों को भेजें, ताकि वो कुरान करीम को सीखे और नमाज पढ़ने का सही ढंग से तरीका मालूम हो जाए, मसला मसाइल की जानकारी हो जाए। यही जलसा कराने का मकसद है, यही उलमाए किराम को दावत देने का मकसद है। अगर ऐसा नहीं हो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि तमाम काम आपके लिए वो अच्छा नहीं है, जितना अच्छा आप उस पर अमल करेंगे उससे ज्यादा अच्छा है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमें आपको फिर मैं कह रहा हूँ, तालीम कुरान को आम किया जाए। तालीम कुरान अगर आप आम करेंगे तो यकीनन हमारे लिए भी, आपके लिए भी दुनिया में भी कामयाब रहेगी और आखिरत में भी कामयाब रहेगी। दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। क्योंकि इशारा हो गया है, ज्यादा वक्त हो गया है और रात भी काफी हो रही है, बस कहने में किसी भी किस्म की गलती हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, मेरी तौबा को कबूल अता फरमा। और मौलाना मुनीरुल हसन साहब ने जो मेरी तारीफ की है, हालांकि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं बकौल अकबर इलाहाबादी के मुबर्रा हूँ, हुनर से सरापा आयत हूँ अकबर। इनायत है अहिब्बा की, अगर अच्छा समझते हैं, अगर अच्छा समझते हैं तो हजरात ये मेरा कुछ नहीं है, इस तमाम सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान है और उसी प्यारे मुजाहिद मिल्लत से हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ फरमा है। अब आइए मैं आप हजरात के सामने नकीब